Hello friends, good evening. Myself Ajit Yadav. I'm an advocate by profession, practicing in Delhi High Court and Supreme Court, including all district court of the Delhi NCR zone. First of all, I'm very thankful to all of my viewers who are regularly watching my videos and putting their review, adding their comments. So I'm thankful for them, and I'll try my best to keep provide whatever knowledge I have and whatever the best possible manner in which I can deliver my knowledge to you upon the legal concept, legal knowledge. So, in this video, we will discuss about who is the superior, Supreme Court or Chief Justice of India. One side, the Chief Justice of India represent the whole judiciary of India, and the President of the Republic of India is the head of all over the country. See, currently our Prime President, Mrs. Her Excellency, Mrs. Draupadi Murmu, she is, belongs to a tribe community from Odisha, and she is the first lady of the our republic, our nation. So, lots of law student and my known friends, they are always asking this very critical question, that who is the superior, who is the most powerful in both segment. One side is the Supreme Court of India, or representative Chief Justice of India, or one side the uh, President of India. So today I'll try to uh, clear this topic, this question, that who is the superior according to the constitution. Every citizen is equal in India. Every citizen have equal right to do their job, to express their view, to celebrate their festival, and to fight for their rights. So whatever the question arise upon this uh, question, sometime in this in our country there is a never seen conflict between president and chief justice of India. But while we are talking about our neighboring country like Pakistan, they have much conflict between president of that Pakistan and Supreme Court of Pakistan. But in our country, we have very regard for the whoever is the president of our country, and also lots of regard for the Chief Justice of India, judges of Supreme Court, judges of High Court, and judges of lower courts. We have regards and we have a system of check and balance. हमारे यहाँ क्या होता है, तो सब लोग अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जोन में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सुपीरियर होते हैं, बट वी हैव ए चेक एंड बैलेंस. हमारे पास एक सिस्टम होता है कि कोई भी अपने पावर से बियॉन्ड जाके कोई भी काम नहीं कर सकता है. तो जहाँ तक देखा जाता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं विदेशों में. और एनी कोई भी हमारा न्यू लॉ पास होता है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनके सिग्नेचर के बाद ही वो पास होता है. वो मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे बड़ा हमारे कंट्री में कोई नहीं होता है. पर जैसा कि हम हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, ये विविधताओं से भरा हुआ है. बहुत सारी चीज़ें हमने कई तरह का हम लोगों ने शासन देखा. हमने राजा और महाराजाओं के सब भी शासन देखे हैं. तो राजा महाराजा के शासन में क्या होता था, किंग जो होता था
वो एम्पायर होता था, वो ही वॉज द एवरीथिंग, सारी, वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी होता था, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी होता था, और वो खुद में जज भी होता था। जो राजा होता था वो अपने जो अपने राज्य का, अपने स्टेट का, वो चीफ कमांडर भी होता था, मुख्य सेनापति भी होता था, और मुख्य न्यायाधिपति भी होता था, और मुख्य जो प्रशासनिक पद होते थे, वो सारी शक्तियां जो होती थी वो राजा में निहित होती थी। लेकिन उसके ऊपर राजा निरंकुश नहीं था, इज नॉट अंडर कंट्रोल, समथिंग इज कंट्रोलिंग हिम। तो उसको 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 कहा जाता है कि जो राजा के जो राज पुरोहित होते थे, जो गुरु होते थे, जो धर्म की शिक्षा देते थे, वो उस राजा को जो है कंट्रोल, राजा को कंट्रोल करते थे। तो इन द सिमिलर वे, सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव लॉट ऑफ power, but the Supreme Court is like a controller. Supreme Court of India, like, just everyone know that our country is run by the Constitution of India, and who is the guardian of Supreme Court? Who is the protector and grantor of Supreme Constitution of India? None other than Supreme Court of India. Even the President of India have a right to call Chief Justice of India to discuss on any लीगल इशू। लाइक अगर हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, उनको किसी भी विषय पे, अगर किसी कानून के किसी बिंदु पे अगर उनको डिस्कस करना होता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको वो बुला सकते हैं। पर दैट राइट इज नॉट बाइंडिंग अप टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो जो राष्ट्रपति हैं, वो उनके मुख्य न्यायाधीश को अपने कंसल्टेशन के लिए बुलाने का उनके पास अधिकार है, लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। उनकी मर्जी होगी वो जाएंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं जाएंगे। इसके लिए क्या होता है, जो मुख्य न्याय जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वो लॉ ऑफिसर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के। तो वो लोग लीगल इशू पे कंसल्टेंस उनको कंसल्ट करते हैं, उनका अपना जो ओपिनियन देते हैं। साथ में इन केस अगर भारत के राष्ट्रपति का पद किसी भी सिचुएशन में खाली होता है, अचानक से किसी बात के चलते, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन कर दें, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेथ हो जाए, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी रीजन से अपने पोस्ट को, अपने जो पद है उसको संभालने में विफल होते हैं, तो उस सिचुएशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जा सकता है। ऐसा हमारे प्रीवियस हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री में हुआ भी है। तो जहाँ तक फाइनल डिसीजन का इशू है, जहाँ जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो इंडिया के सबसे बड़े लीगल बॉडीज हैं, और वो भारत के राष्ट्रपति से पद में, पावर में और संवैधानिक अधिकारों में राष्ट्रपति से ऊंचे ओहदे पे हैं। ठीक है। और हमारा जो जो फिलहाल में हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, बहुत विद्वान हैं, और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं। और इनका जजमेंट जो होता है, इनके पर्सनालिटी को उसमें इसका जो झलक हम लोग देख सकते हैं, और विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, और किसी भी तरीके का मीडिया के प्रेशर को, पॉलिटिकल प्रेशर को इग्नोर करते हुए जो जस्टिस होता है उसको डिलीवर करते हैं। और रिसेंट दिनों में जो देखा गया है, अभी 5-7 साल या 10 साल की जो हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, इस हिस्ट्री में क्या हम लोग देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो लोग तो विद्वान हैं, अपने पद को, अपने पावर को, अपने प्रभाव को, जो भी उनका राइट्स है उसको बेहतरीन तरीके से वो समझ रहे हैं, उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले 2-3 टर्म से जो हमारे देश में राष्ट्रपति आ रहे हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो जो पहले के हमारे राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए,
इवन लास्ट अभी प्रणब मुखर्जी साहब हुए हमारे देश के राष्ट्रपति, के आर नारायणन हुए। तो वो जो उनके अंदर जो विद्वता थी, जो कार्य करने की क्षमता थी, जो उनके अंदर लॉ की जो समझ थी, देश दुनिया की जो समझ थी, और जो जिस तरीके से वो लोग अपने पद और प्रभाव का प्रयोग करते थे, तो रिसेंट के दिनों में जो राष्ट्रपति लोग आए हुए हैं अभी दो तीन, तो वो स्टेमिना उनके अंदर नहीं दिखता है। और मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में वो सिर्फ अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो डेली बेस पे उनका काम होता है उसको कर रहे हैं, और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर मिले हुए हैं राष्ट्रपति के तौर पे, उसका वो लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जी, अगर हम हमें शक्ति बहुत सारी दी गई है, हम हमें किसी अ, हमें परिवार का मुखिया बना दिया गया, और हम अपनी जिम्मेवारी को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, और उसी के जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो नॉन की पोस्ट पे है, या आपके सिमिलर है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुस्तैदी से निभा रहा है, अपने अपनी जो भी उसकी जिम्मेदारी दी गई उसको महत्वपूर्ण तरीके से निभा रहा है, और अपने हक हकूक़ के लिए लड़ भी रहा है, और बेहतर से बेहतर आउटपुट दे रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में, अभी के 10-15 सालों में, मुझे लगता है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति से पद प्रतिष्ठा और प्रभाव में अ, ऊपर है। तो अभी के लिए मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो ओपिनियन है, आई एम 101% agree and satisfied that Chief Justice of India is the most powerful and more powerful than Honorable uh, Prime Minister, President of India. So, my friends, this is my opinion, and I'll continue to making video up to legal and political issues. Uh, and requesting you all of guys that you just make a comment and suggest whatever topic you like to see videos. I'll try to make video on whatever your choice and whatever your recommendation. So very thankful. I'm very thankful to